Praise the Lord, Highest Praise Church family. Once again, a warm welcome to each one of you for this Wednesday evening time with the Lord. 40 minutes with Jesus. Hallelujah. प्रभु में आप सबों को मेरा स्वागत, विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं. All of you are doing well, especially कई लोग पिछले दिनों में बीमार थे. विश्वास करो कि आज सब लोग सही है. हालेलुया. कुछ समय हम वचन के साथ बैठेंगे. We are not able to meet physically, लेकिन इस इंटरनेट के द्वारा, हमारे ऑनलाइन सभा के द्वारा, let's spend some time, about 40 minutes with God's word. When I say sitting with the Lord, it is sitting with God's word. अपने अपने बुक्स को ले लीजिए, बाइबल्स को ले लीजिए. We will learn few things that I am learning. मैं भी कुछ विषय को इन दिनों में सीख रहा हूँ. उसी चीज को हमें आपके सामने रखूंगा, so that we can learn together. And the Holy Spirit is our teacher this evening. Hallelujah. So let's put our hands together and welcome Holy Spirit to teach us some wonderful word from His own scripture. Hallelujah. Praise the Lord. What do we learn today? We will learn about the global issue. Global issue क्या है? One of the biggest global issues that we are all facing is anxiety and worry. Isn't it? सभी लोगों को है, सभी लोगों को. आप एक दूसरे को देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन everybody has anxiety. Everyone, be it believer, non-believer, pastor, non-pastor, या फिर a normal believer, anyone in the world. We all have anxiety. Some of them, their anxiety level is very severe. कई लोगों का जो worry, जो tension है, वो बहुत ज़्यादा severe है. कईयों के लिए वो mild है. That's the only difference. But we all have this global problem, which is anxiety and worry in our lives. You know, हम कहते हैं don't worry, do not worry, हम worry नहीं होंगे. ऐसे सब सारी चीजें मैं भी प्रचार करता हूँ. हम सब प्रचार को सुनते हैं. we tend to tell each other. हम एक दूसरे से कहते हैं, अगर किसी को देखा परेशानी में, हम उनको क्या बोलते हैं? Don't worry brother. हम worry no worry कहते हैं, लेकिन when it comes to us, we are all going through the same situation. हम सारे लोग उस anxiety में कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं. And I will tell you something. This worry is like a what do you say? It is like a बोलते हैं हम लोग जो चेयर जो ऐसा मूव होने वाला चेयर, उसे क्या कहते हैं? The rocking chair. The rocking chair जैसा. You feel as if you're doing something, लेकिन आप कहाँ हो? आप वहीं पर हो. आपने देखा होगा ये बच्चे लोग, ये वुडन, ये लकड़े का बना हुआ एक प्रकार का घोड़ा होता है. तो घोड़े में बैठेगा तो घोड़ा ऐसे ही लेगा. जितना आप फास्ट करोगे वो जितना फास्ट भागेगा, लेकिन वो घोड़ा कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा. घोड़ा वही के वही है. आप आधा घंटा चलाओ, पौना घंटा चलाओ, 1.5 घंटा चलाओ, पूरा दिन चलाते रहो, लेकिन वो घोड़ा कहाँ होगा? घोड़ा वही के वही है. आई एम टेलिंग यू, worry is something like that. Anxiety. Worry will make you do lot of things. या जब आप में anxiety आ जाए, या फिर मेरे में जब anxiety आए, हम कई चीजों को करेंगे, thinking it will bring some solution. But let me tell you, the Bible itself says there is no solution to our worries and our anxiety. यीशु मसीह ने, that's why प्रभु कहता है कि do not worry, do not worry. क्योंकि आप जितना भी worry करो, हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत सारे चीजों को करेंगे, बहुत सारे solutions करेंगे, हम try करेंगे, वो करना, ये करना, lot of things we will see, we will do, we will panic. लेकिन हम कहाँ नहीं जा रहे? कहीं नहीं जा रहा. घोड़ा वही के वही है. इसलिए we will learn a little bit about anxiety. What is this anxiety? What causes this anxiety? And how can we literally, biblically and practical ways. हमारे पास समय है, अगला 30 minutes है, 35 minutes है. So I want you to be, what do you say, take this time to learn from the Bible. How can we get rid of anxiety? It's very easy to say no worry, लेकिन हम कई बार हमें पता नहीं कैसे हम एंजाइटी से बाहर आए. So today I was learning about it, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी कभी कभार एंजाइटी आ जाता है, तो I was learning about it. So I thought maybe
I will bring that to the church, and together we will learn and we will apply it in our life so that we will not worry like the world worries. Hallelujah. What is anxiety? Anxiety is a distress about future uncertainties. हमारे कल के बारे में सोचकर, कल के बारे में, जब हम कल के बारे में, हमें पता नहीं कल क्या होगा हमारे साथ, हमें पता नहीं कल हमारे जिंदगी में क्या क्या हादसाएं होने वाली है. When we are uncertain about our future, that brings anxiety inside us. वो हमारे अंदर anxiety को ले आते हैं. And it is characterized by mental agitation and uneasiness. उसका symptoms क्या है, वो क्या दिखाएगा? मेंटल एजिटेशन, या फिर हमारे अंदर क्या होगा, एक प्रकार का इरिटेशन होगा. हम सुखी नहीं है, सुखी घर में खाना है लेकिन खाने का मन नहीं होगा, लोग बैठे हैं लेकिन बात करने का मन नहीं हो रहा है. वी आर लाइक मेंटली एजिटेटेड, या फिर मेंटली इमोशनली हमारे मन के अंदर एक व्याकुलता है, एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन है. ये क्यों होता है? क्योंकि एंजाइटी या फिर वरी है. That is one part, and the second is uneasiness. We will be uneasy. एक relaxed मन हमारे अंदर कभी भी नहीं होगा. हम जितना भी कुछ करें, लेकिन जब तक ये वरी अंदर है या फिर एंजाइटी अंदर है, हम uneasy रहेंगे. हम ये फिर uneasy right now also. आप लोग टेलीविजन के सामने बैठे हैं, फोन से लेके बैठे हैं, डिवोशन को सुन रहे, वचन को सुन रहे, लेकिन अंदर से इतना uneasy है. We are so worried about how things will be. That's because there is anxiety. हमारे अंदर वो anxiety और वो जो worry है, इसे इतना कार्य कर रहा है. That is why there is no rest inside us. Last Sunday मैंने प्रचार में मैंने कहा था, जब तक हमारा मन स्थिर नहीं हो and our heart is not resting in God, we cannot hear God's voice. It's very important. बहुत जरूरी है कि हमारा heart, हमारा हृदय प्रभु में स्थिर हो जाए, रेस्ट ले, so that we can hear the little voices of God in our lives. Hallelujah. Amen. It is primarily to do with what may happen in the future, near or distance. कई बार नहीं, 99% हमारे अंदर ये वारी और एंजाइटी आता है जब हम कल के बारे में या फिर हमारा भविष्य के बारे में सोचकर हमारे अंदर एंजाइटी आता है. हालेलुया. What causes anxiety? What causes? इसका रीजन क्या है? Anxiety is caused by real or imagined threats to our well-being. Yeah, very important. आप लिख लीजिए. Anxiety is caused by real, सच्ची बातें, या फिर इमेजिनेशन, हमारे मनों में इमेजिनेशन, हम सोचते हैं शायद ऐसा होगा, नहीं होगा, पता नहीं, लेकिन हमारा मन में assumption is a very strong word. Imagine, हम इमेजिन कर लेते कि शायद ऐसा कल होगा. हम पहले, ऐसा होने से पहले हम इमेजिन कर लिया कि कल शायद मेरे जिंदगी में ये होगा, ये बीमारी मेरे घर में भी आएगा, ओ मुझे थोड़ा सिम्टम्स है, मेरे जिंदगी में भी हो सकता है, देखो अगर उनके घर में आ गया तो मेरे घर में भी आ सकता है. These are imaginations. आया नहीं है, रियलिटी नहीं है, ऐसा कुछ हमारे जिंदगी में हुआ नहीं है. लेकिन जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, चीजों को सुनते हैं, we tend to imagine that yes, this is coming to me. और उसके कारण क्या होगा? एंजाइटी, एक थ्रेट आ जाता है. थ्रेट को क्या बोलते हैं? थ्रेट को हिंदी में बोलेंगे कोई आफत, हम बोलते हैं आफत आने वाली है, क्या? इट्स अ थ्रेट. आया नहीं है लेकिन आएगा, ये सोच कर ही हमारा मन व्याकुल हो जाते हैं. We feel inadequately protected against these threats. Threats such as social rejection, physical injury, disease, poverty, death, wide range of other threats. ये सारे threats ऐसे प्रकार के threats हमारे जिंदगी में कभी कभार आ जाते हैं. कैसा? पॉवर्टी के बारे में, पैसे के मामले में. दूसरा है डिजीज के बारे में. इन दिनों में सबसे ज्यादा लोगों में थ्रेट क्या है? एक ही है, कोविड का थ्रेट. हाँ, वहां पर आ गया, यहाँ पर आ रहा है, केसेस बढ़ रहा है, न्यूज़पेपर देखा, सब जगह पे केसेस बढ़ रहा है. ओ पास्टर मेरे घर में भी है, मैंने भी आज खांसा, ओ मुझे भी खांसी आ गई, ओ मैंने भी लोगों के बीच में गया था, मैं उनको मिल के आया. These are all threats about disease. डिजीज आया नहीं है, नहीं कोविड आया नहीं है,
लेकिन उससे पहले ही हमारा मन व्याकुल हो जाता है बिकॉज ऑफ द थ्रेट दैट दिस माइट हैपन टू मी, और वो सोचकर हमारे अंदर वरी और एंजाइटी घुस जाते हैं। Hallelujah. Listen to this now. Anxiety has three main elements. Very important. Write it down. People who are writing notes, please write it down. Very important. Three main elements of worry. ऐसे तीन चीजें जो एंजाइटी के साथ या फिर वरी के साथ आते हैं। पहला है इनसिक्योरिटी, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। पहला इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी का मतलब है कि हमें ऐसा लगता है कि कल मेरे साथ कुछ खराब होने वाला है, ओ कल मेरे साथ कुछ खराब होगा, कल मेरे परिवार के साथ कुछ खराब होगा, कल मेरा शरीर में कुछ खराब होगा। दैट इज इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी अबाउट टुमारो, दैट ब्रिंग्स वरी, दैट्स एन एलिमेंट ऑफ वरी। और दूसरा है हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का मतलब देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट दिस सिचुएशन। हाँ, वो दूसरा वरी का एलिमेंट है। क्या है? हेल्पलेसनेस, कि मैं कुछ नहीं कर सकता। देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू। ऐसा एक सिचुएशन में फंसा हुआ हूं पास्टर साहब, ऐसा एक तकलीफ में मैं आ गया हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कितने लोगों ने हाथ उठा लिया ऐसा, कई चीजों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, पैसे के मामले में, बिजनेस के मामले में, कितने लोगों ने हाथ उठा लिया सेइंग दैट मुझसे नहीं होगा, I cannot do anything about it. That is helplessness. That also is an element of worry. वो भी हमारे अंदर चिंताओं को या फिर वरी या फिर एंजाइटी को ले आता है। और तीसरा है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है? There is no one to help me. मेरा मदद करने के लिए कोई नहीं है, ना मेरा परिवार है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा फ्रेंड्स है, ना कलीसिया है, ना मेरा ऑफिस वाला है। There is nobody to help me. जब ऐसे चिंताएं हमारे मनों में आ जाए कि मेरा अगर कल मैं कोई संकट में फंस जाऊं, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, अगर कोई तकलीफ में मैं फंस जाऊं, there is no one to help me. अगर वो सोच हमारे मन में आ गए, that will bring anxiety to us. So these are three main elements. What is it? पहला insecurity, something bad will happen. कुछ खराब मेरे साथ होने वाला है। ये सोच अगर हमारे मन में है तो वो खुद ब खुद हमारे अंदर एंजाइटी ले आएगा। दूसरा है there is nothing I can do about this. मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पूरी तरह से बंधा हुआ हूं, मैं हेल्पलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वो चिंता हमारे मन में है तो भी वो एंजाइटी ले आएगा। और तीसरा there is no one to help me. अगर कोई मुझे मदद करने के लिए नहीं है, आइसोलेशन, मैं अकेला हूं, कोई मेरा मदद करने के लिए नहीं है, अगर ये सोच हमारे मन में है तो भी क्या आ सकता है? एंजाइटी और वरी आ सकता है। These causes may operate individually or in various combination. कभी कभार ये एक एक करके हमारे जिंदगी में काम कर सकता है, या फिर ये सारे चीजें एक व्यक्ति की जिंदगी में कार्य कर सकता है। और वो व्यक्ति लास्ट में क्या होगा? इमोशनली he will be drained out. इमोशनली, मन से वो पूरी तरह से, शरीर में तो तगड़ा दिखेगा लेकिन मन से पूरी तरह से टूट जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एंजाइटी और वरी ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। और ये ज्यादा करके क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आवर इमेजिनेशन। हकीकत नहीं है, सच्ची बात नहीं है, रियल नहीं है, रियल नहीं हुआ है, लेकिन ये सारे चीजें मन में सोचते सोचते, शायद ऐसा होगा, कल के बारे में सोचते सोचते हम कहां पर पहुंच जाएंगे? वरी में, और एंजाइटी हमारे अंदर पूरी तरह से भर जाएंगे। एंजाइटी इज अ फॉर्म ऑफ फियर एंड इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। हालेलुया। इन दिनों में कई लोगों को एंजाइटी इतना बढ़ गया है, इतना टेंशन बढ़ गया है। सी, माइल्ड इज ओके, माइल्ड, वी शुड बी वरीड अबाउट स्मॉल थिंग्स। थोड़ा थोड़ा चीजों में थोड़ा हम सोचना चाहिए, हम ऐसा भी केयरलेस लोग नहीं हो, लेकिन उसे एक लेवल के आगे हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इट विल ओनली ब्रिंग फियर, टेंशन, अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस, और अंत में एक इमोशनल ब्रेकडाउन तक एक व्यक्ति को हो सकता है, सिर्फ एंजाइटी और वरी के द्वारा।
How do we overcome this problem in a Christian way? Biblical scripture से मैं कहूँगा कुछ वचन आपके साथ. जब एंजाइटी और वरी अगर आपके अंदर है, अगर आ रहा है या फिर मेरे अंदर आ रहा है, the first thing that we as Christians can do is trust in God. Trust in God. परमेश्वर पे भरोसा और ज्यादा करो. अगर इतना लेवल अगर हम करते थे प्रभु पे भरोसा, तो आज थोड़ा और ज्यादा कर लो परमेश्वर पे. क्योंकि जब तक हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करेंगे, हमारा ये वरी, ये एंजाइटी, ये भविष्य के बारे में जो टेंशन, ये सारे चीजें होते ही रहेंगे. Which means the first thing what we need to do is trust in God. The best remedy is to deal with the problem cause, not just the symptoms. उस प्रॉब्लम, हमारे जिंदगी में जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, उसको हम डील करना है. और वो कैसे डील करेंगे? वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है. क्योंकि ये परमेश्वर ने लिखा हुआ, परमेश्वर का ब्रेथ है ये. ये लाइफ देता है हमें, ये हमें जिंदगी देता है. अगर हम इस वचन को उपयोग करेंगे, इस वचन पर पढ़ेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे, तो क्या होगा? हमारा वरी, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, इट विल कट डाउन. वो कम होते जाएगा, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पे बढ़ते जाएंगे. ओके, what is the truth about insecurity, helplessness and isolation with regards to a Christian life? When a Christian feels insecure, he needs to read Hebrews chapter 4 verse 16. अगर कोई व्यक्ति, अगर आप एक व्यक्ति, और जब आपको भविष्य के बारे में सोचकर आपको डर लग रहा है, अगर आपको इनसिक्योरिटी, आपको कल के बारे में सोचकर आपको टेंशन हो रहा है, आपको क्या पढ़ना चाहिए? Hebrews, रिमेंबर Hebrews 4:16. आइए हम पढ़कर देखिए क्या है वो. इब्राहिम किताब उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन. Let's read and see. Hebrews chapter 4 verse 16. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. वहां पर वचन कहता है, we come, let us come, approach the throne of grace. परमेश्वर के उस स्थान, उसके करीब हम आए, क्योंकि हमारे जब भी हमें नीड है, जब हम तकलीफ में है, सबसे उत्तम जगह जहां प्राणा वो है परमेश्वर के पास, और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है. जब पौलुस के जिंदगी में भी तकलीफें आई, जब पौलुस he went through lot of sufferings, he was struggling, उनके अंदर भी इनसिक्योरिटी आ गया, तब उन्होंने प्रभु को बोला, प्रभु आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? जैसे हम कई बार प्रार्थना करते, पौलुस ने भी प्रार्थना किया, प्रभु मैं क्या करूं? तब परमेश्वर ने क्या कहा? God did not bring any solution there, but God said, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. परमेश्वर के लोगों, जब हमें इनसिक्योरिटी हो, कल के बारे में सोचकर, भविष्य के बारे में सोचकर, बच्चों के बारे में सोचकर, बच्चों का एग्जाम के बारे में सोचकर, उनका रिजल्ट्स के बारे में, उनका शादी के बारे में सोचकर, कोई भी विषय क्यों ना हो, if you are worried about something in your future, this is the word. Come on, God's grace is enough for us. उसका अनुग्रह काफी है. उसके अनुग्रह पर, उसके ग्रेस पर, उसके वचनों पर, उसके सामर्थ पर थोड़ा विश्वास कर लीजिए, and you will see how worry and anxiety will just निकल जाए. पता भी नहीं चलेगा कहां से निकल गया. Hebrews 4:16. When you feel helpless, जब आपको लगे आप हेल्पलेस, आप नहीं कर सकते हो, आपसे नहीं होगा, come on, let's read Romans chapter 8 verses 31. Romans 8:31. 8:31, Romans का 8:31. वहां पर कहता है, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Come on, these are powerful words. ये बहुत सामर्थी वचन है. इन वचनों को हम कई बार हमारे प्रार्थनाओं में तो बोल देते जोर से, लेकिन ये प्रार्थना में बोलने से अच्छा कभी बोलना चाहिए when you feel you cannot do it.
जब आपको लगता है कि मैं सरवाइव नहीं करूंगा, जब आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं गिव अप करने वाला, प्रभु मैं गिव अप करूंगा, मुझसे नहीं हो रहा, जब आपका अंदर आत्मा कहे मुझसे नहीं होगा, तब ये वचन को वहां पर डाल दीजिए, बॉम्ब जैसा डाल दीजिए वहां पर। बोलो, नो, इफ गॉड इज फॉर मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी? हालेलुया। Somebody say an amen to that word. If God is for me, who can be against me? कौन मेरे खिलाफ आ सकता है अगर परमेश्वर मेरे साथ है? कितने लोग बोलते प्रभु आपके साथ है? कितने लोगों में ये विश्वास है? Come on, write an amen there. If you really believe that your God is with you, if God is for you, if God's grace is over you, if your God is favorable over you, if you believe it, write an amen there. Say an amen there. Say, yes, my God is with me. If my God is with me, then the Bible says, who the hell can stand against us? Hallelujah. अगर ये वचने हमारे दिलों में उस सही समय पर डाल देना, these are like those क्रोसिन मेडिसिन्स। जब सर में दर्द हो जाए, हम क्रोसिन अगर ऐसे खाएंगे तो उसका इफेक्ट मालूम नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? आप ऐसे ही क्रोसिन खाओ, आपको उसका इफेक्ट ही नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन उसका इफेक्ट कब मालूम पड़ेगा? जब आपको सिर दर्द है, सिर फटा जा रहा है, तब एक डोलो खा लीजिए, तब एक क्रोसिन खाइए, तब आपको पता चलेगा उस क्रोसिन का पावर। इसी तरह से जब हमें लगे कि हमसे कुछ नहीं होगा, कल मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं थका हूं, मैं गिरने वाला हूं, मैं पराजित हो रहा हूं, उस समय पर ऐसे वचनों को डाल दीजिए वहां पर हमारे दिलों में। Come on, you will see the power of these words in our life. आपको पता भी नहीं चलेगा आपका एंजाइटी और वरी कहां निकल गया। हालेलुया। When you feel isolated, जब आपको लगे कि आपको मदद करने के लिए कोई नहीं, जब आपको लगे कि there is no one to help you, come on, take the word Psalms 23:4. What does it say? Psalms 23 तो हम सबको पता है। Even when I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear because my God is with me. Hallelujah. परमेश्वर मेरे साथ है। Come on, अंधकार के समय में, घोर अंधकार में, तकलीफ के समय में, जब कोई नहीं हो, तब अगर मेरे अंदर ये वचन है, तो मेरा भरोसा प्रभु पे और बढ़ जाएगा। मेरा वरी और एंजाइटी ऐसे ही भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। Matthew chapter 28 verses 10, that is another powerful word. परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, जाकर सुसमाचार सुना, दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुना। And what does he say? Come on, I will be with you. I will be with you. परमेश्वर का वाचा है, प्रभु का प्रॉमिस है टू द डिसाइपल्स। सिर्फ डिसाइपल्स के लिए है, आपके लिए और मेरे लिए। चाहे हमारा परिवार साथ में रहे, चाहे कलीसिया रहे, चाहे लॉकडाउन होने दो, लेकिन प्रभु कहता है, बेटा इस लॉकडाउन के बीच में भी मैं तेरे साथ हूं। जब ट्रेन बस सब कुछ बंद है, जब दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है, हम एक दूसरे को नहीं मिल सकते, नो फेलोशिप, परमेश्वर कहता है, बेटा दैट इज ओके, आई एम विथ यू। हालेलुया। ये वचन हमारे हृदय में स्थिर होने दो प्रिय भाइयों बहनों। That itself will enable us to trust in our God more. प्रभु पर भरोसा रखने हमें होगा, और जब हम प्रभु पे भरोसा रखें, that is the solution to all worries and anxiety in our life. Hallelujah. अगर मैं ये प्रचार ऐसे करते जाऊँ, I will not be able to finish. I can just keep talking because God's word is so wonderful, so powerful in our life. Hallelujah. The remedy for anxiety is complete trust and confidence in God's ability. Write it down. The remedy for anxiety, आपके जिंदगी का हर परेशानी, हर टेंशन का एक ही सॉल्यूशन, एक ही मार्ग, वो है परमेश्वर के एबिलिटी पर भरोसा करना, परमेश्वर के सामर्थ्य पे भरोसा करना, परमेश्वर का उसका उस फेवर, उसके अनुग्रह पर भरोसा रखना। जितना हम उसमें भरोसा रखेंगे, हमारा एंजाइटी सारे चीजें हमें छोड़कर भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। May the peace of God reign in our heart because God promised to give us peace. दुनिया हमें शांति नहीं दे सकते,
दुनिया में कई लोग हैं जिनका नाम शांति होगा, लेकिन शांति दाता सिर्फ एक है, वो है हमारा परमेश्वर. And my God can give us peace because He promised us from His word that peace be with you. I give you peace which is eternal. वो कुछ समय के लिए नहीं है, वो पीस इटर्नल है, अनंत काल के लिए. और उस भरोसा, उस परमेश्वर पे हम भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो सीवियर टेंशन है वो क्या हो जाएगा? माइल्ड टेंशन हो जाएगा. सीवियर एंजाइटी माइल्ड एंजाइटी हो जाएगी. हालेलुया. May the Lord help each one of us to trust in God. Now I want to bring few practical steps. Practical steps. कुछ practical आप बोलेंगे पास्टर भरोसा तो सही है, लेकिन practical क्या करें? पहला चीज है, when you are anxious about something, take the Bible and start reading the word. Write it down. Yes, write it down. Most is possible, right? Put the notes there. Write it down. Take the Bible and start reading. This is my experience. जब मैं एंशियस हूं, जब मैं वॉरिड हूं, जब मुझे पता नहीं कल के बारे में, कल क्या होगा, कलीसिया के बारे में, अगर कोई व्यक्ति के बारे में, कोई भी विषय में जब मैं व्याकुल हूं, the first thing I do is I take the Bible. I take the Bible and I start reading. And I am telling you, this Bible, वचन कहता है, it will renew our mind. हमारे सारे चिंताओं को वो दबाकर परमेश्वर का वचन वहां पर भर देगा. It will renew. Romans में कहता है, renew your mind with the word of God. अगर वो renew होना है तो वचन को पढ़ना भी जरूरी. और कैसा पढ़ना? रूटीन पढ़ना नहीं. No routine, but seek God. वचन को लेकर seek Him. Say, God, you speak to me. You speak to me. You reveal your plans. जैसे मैंने last Sunday कहा था, come with a humble attitude before God and say, God, speak to me. And my God will speak to us from His word. He will speak to us from His word. Try it and see. People of God, try it. मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहता हूं, ये किधर से सीखा नहीं है, एक्सपीरियंस से कहता हूं. जब एंजाइटी आए, जब वारी आए, टेंशन आए, पैसे के मामले में हो, कोविड के बारे में हो, कोई भी विषय में क्यों ना हो, take the Bible and start reading. God will start comforting you. He will give you peace. That's the first thing. Second is, be realistic. More important, practical. Be realistic. Sometimes we have to be realistic about the things that's happening around us. We need to understand that सारे चीजें हम जैसे सोचेंगे वैसा नहीं होगा. कई लोगों में ये प्रॉब्लम है, because they feel that they are believers. वो believers है, प्रभु में, सारे चीजें जो हम सोचते वैसा होना चाहिए. ये क्यों हो गया पास्टर, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है. रियलिस्टिक, बी रियलिस्टिक. अगर कोविड कांदिवली में है तो वो मेरे घर के बाजू में भी होगा. इट इज अराउंड मी. अगर देयर इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस कमिंग इन द वर्ल्ड, इट मे इफेक्ट माय कंपनी टू. इट इज देयर. वो यहाँ पर भी है. लेकिन उस समय में अगर हम रियलिस्टिक नहीं होंगे, हम बोलेंगे प्रभु ने ये क्यों भेजा. कई लोग आज भी पूछते प्रभु को, प्रभु तूने कोविड क्यों भेजा. मैं ये कई बार प्रचार कर लिया, मैंने कई बार बोल्डली मैंने ये स्टेटमेंट कहा, God did not send COVID. My God is not a God who will send COVID. My God says love your enemies. मेरा परमेश्वर का सिखाना ये है कि तुम अपने शत्रु से प्रेम रखो. अगर मेरा परमेश्वर ऐसा है, जब यीशु मसीह को लोगों ने ठुकराया, लोगों ने थूका, लोगों ने मारा, परमेश्वर ने उसके लिए कोई गलत नहीं सोचा. प्रभु ने कहा, God forgive him because he doesn't know what he's doing. Then how can my God, whose another name itself is love, my God's name is love, he is full of love, that unconditionally loving God sent COVID to us. Please don't believe in such words. Don't ask that question to God. God, why did you send it? This is a pandemic that's come to the world. We need to face it. Yes, we need to face it. स्टार्टिंग में हम कहते थे कि ये कलीसिया में नहीं आएंगे, या फिर चर्च के लोगों में नहीं आएगा, या फिर क्रिश्चियंस में नहीं आएगा. लेकिन सिकनेस, एक सरदर्द, एक फ्लू, एक कैंसर, एक डायबिटीज जैसा एक बीमारी है, वो बीमारी सब जगह फैल रहा है, सभी को आ रहा है. We can have faith in God, but at the same time we have to be realistic to believe that it's there everywhere.
अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे, अगर हम अपने आप को सही तरह से केयर नहीं रखेंगे, it can come to us too. At the same time, we can believe in God. Our faith is there that my God protects me. But at the same time, there are times when church, we have to be realistic about things. For everything, don't blame God. For everything, don't say my God will speak. Oh, the Holy Spirit will lead me. No, God has given us wisdom. परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, शक्ति दिया है. He has given us the right to choose the right and wrong. We need to be realistic. Then we will not worry. We will not be anxiety. नहीं होगा ज़्यादा. Hallelujah. We need to believe that some things will not change, and we need to be realistic enough to accept it. कई चीजों को हम बदलने को देख रहे हैं. हम बोल रहे हैं ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए. नहीं, वो नहीं बदलेगा, वो वैसे ही है. वो रियलिस्टिक, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये बदलने वाला नहीं है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. थर्ड, there are a lot of things that I can write. मैंने कई चीजों को यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, but since we don't have time, I'm just going quickly. Third is be flexible. Be flexible. Be ready for change. हमारे कई चीजों को हम लोग कई बार इतने stubborn हो जाते हैं कि मेरा वे, मैं जैसे सोचूं ऐसा ही होना चाहिए. जब तक हम वैसा सोचेंगे, it will only cause more anxiety to us. लेकिन एंजाइटी निकल जाएगा if we are little flexible and we are ready to just leave it. कई चीजों को just leave it. Oh, be adaptable, be adjustable. Tell somebody be adaptable, be adjustable. Adjustable होना चाहिए. कई बार हमारे घरों में भी टेंशन्स क्यों आते हैं, क्यों एंजाइटी आता है? बिकॉज हमने कुछ प्लान बना लिया, हमने कुछ सोच लिया, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा ही होना चाहिए. बिकॉज वी आर सो रिजिड एंड सो स्टबर्न अबाउट थिंग्स. जब वो नहीं होता या फिर वो समय लगता है तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? एंजाइटी आ जाता है. बट बी रेडी टू बी फ्लेक्सिबल. एक ही चीज है जो नहीं बदलता, वो है हमारा परमेश्वर. बाकी हर एक चीजों में हमें कभी कभार बदलाव और चेंजेस लाना चाहिए. हमारा विश्वास जो परमेश्वर में, वो स्थिर रहना, वो चेंज नहीं हो रहा. प्रभु पे भरोसा रखना, वचन पर भरोसा रखना, इसमें कोई बदलावट नहीं आना चाहिए. लेकिन कई बार हमारे जिंदगी में कई चीजों में we have to be little flexible so that we will not be anxious about things in our life. Hallelujah. Third one, fourth one, focus on the good care, minimize the unnecessary. There are a lot of cares in the world, लेकिन हमारे जिंदगी में कई चीजें हैं जो हम व्याकुल होते हैं. कई चीजें, there are good cares and bad cares. अभी good cares क्या है? Good cares is about our family. We care about our family, our relationships. We care about them. Our finances. We care. Bad care is, अरे समाज ने हमारे बारे में क्या बोला, सोसाइटी ने हमारे बारे में क्या बोला, किसी ने हमारे बारे में कुछ कह दिया. Bad care. Why are we so worried about it? हम लोग जितना उनको केयर करेंगे, जितना हम सोचेंगे उसके बारे में, it will only bring anxiety to us. Leave those cares away. Let God handle it. कई चीजों को हमें हमारे हाथों से ऐसा छोड़ देने का, रिलीज कर देने का, and tell God, you handle it. हम कई चीजों को ऐसा पकड़ के रखे बोलते, God you handle it. No, God is saying you release it. You release that thing. You release that care. You release that problem. जैसे यीशु मसीह ने कहा, oh put all your burden on me. That putting is our job. डालने का काम हमारा है. हम उससे पकड़ कर बैठे कई चीजों को, जो अनवांटेड अननेसेसरी चीजों को, अननेसेसरी टेंशन्स को हम पालते हैं, उसे पकड़ कर रखा हुआ है, और उसके बाद में हम बोलते हैं प्रभु तू संभाल. हाउ कैन गॉड केयर अबाउट इट? व्हिच मींस अननेसेसरी केयर्स. गुड केयर्स, यस यू हैव टू केयर. अच्छी चीजों का, परिवार का ख्याल रखना. जो चीजें जो आपके जिंदगी में जो जरूरतमंद चीजें, टेक केयर ऑफ इट. Other things, unnecessary चीजों को बाहर रखिए. That itself will reduce your tension and your worry. Hallelujah. There is no benefit when you are only worried about things around you. No, don't do that. Fifth one,
Learn to live one day at a time. Very important for lot of people. Learn to live one day at a time. उस दिन के लिए जीना सीखो, उस दिन के लिए। कई बार हम कल के बारे में सोचकर आज जीना भूल जाते। हमारे घर में कभी कभार क्या होता है, कभी भी हम लोग उस दिन का फ्रेश दूध नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्योंकि आज जो दूध लेके आया उसे प्लॉजी फ्रिज पर रख देंगे, 2 लीटर होगा, उसमें से 1 लीटर फ्रिज पर रखेंगे, और कल हम जो दूध आएगा वो भी फ्रिज में रखेंगे, और कल कौन सा दूध लेंगे? आज का, 1 दिन पहले का। सो समटाइम्स आई थिंक अरे वी विल नेवर हैव फ्रेश मिल्क इन आवर होम। हम कभी भी वो फ्रेश खाने को खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम चीजों को स्टोर कर रहे हैं फॉर टुमारो। कम ऑन, इफ यू आर वरीड अबाउट टुमारो, इफ यू आर वरीड अबाउट फ्यूचर, what are you messing up? You are messing up your today. आज का, today God has given you to live. Today God has given you a wonderful day. God has given you good opportunity today. लेकिन हमारा फोकस सब किधर है? कल के बारे में, परसों के बारे में, अगले साल के बारे में। And we tend to forget to live a good life today and enjoy the opportunities that God has given us today. Don't become that way. Hallelujah. There is something nice that I put यहाँ पर कहीं तो मैं लिखे रखा था। Winston Churchill said on his deathbed that he had a lot of trouble in his life, most of which never happened. Wow. Winston Churchill एक बड़ा व्यक्ति था, thinker, writer. So he is written, उनका डेथ बेड पे, वो जब मरने के समय में उन्हें कहा that there were lot of things that troubled in his life. उनके जिंदगी में कई चीजों के बारे में वो व्याकुल थे, और उसमें से ज्यादा करके चीजें उनके जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं। सोचकर देखो, हमारे जिंदगी में भी कितने चीजों के बारे में हम सोचकर व्याकुल हो जाते हैं। कल ऐसा होगा तो क्या होगा, परसों ऐसा होगा तो क्या होगा, बच्चे को ऐसा होगा तो क्या होगा, कोविड अगर आ गया तो क्या होगा, अगर मेरा बिजनेस बंद हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा जॉब गया तो क्या होगा। एंड वी आर worried and worried and worried and we spoil our day. Spoil the day. This is the day that the Lord has given. Let's rejoice and be glad. And वचन कहता है this is the day प्रभु ने दिया, लेकिन हम जो दिन परमेश्वर ने हमें दिया उस दिन को हम बर्बाद कर देते, thinking about what wrong can happen in our future. Don't do it. Live for that day. उस दिन के बारे में देखो, उस दिन का खाना, उस दिन का चीजें, उस दिन की जरूरतें, मेरा परमेश्वर कल को उसके हाथों में रखा हुआ है। That beautiful song. Because he lives, I can face tomorrow. Because I know he holds my future. Holding is like the sea. Holding is this. Holding. He holds my future. मेरा भविष्य किधर है? मेरे परमेश्वर के हाथों में। कितने लोग आमीन बोलेंगे उस विषय के लिए? मेरा कल प्रभु के हाथ में, मेरा नेक्स्ट ईयर 2020 प्रभु के हाथ में, 2022 प्रभु के हाथ में, मेरा फ्यूचर मेरे प्रभु के हाथ में। अगर ये विश्वास हमारे अंदर है, then we will know how to live today. Most of our frustration, irritation, anxiety, fear is because we are thinking too much about what can happen tomorrow or what will not happen tomorrow. Stop thinking about tomorrow. Live for today. That itself will help you and me to be out of anxiety. Sixth one, quickly, sixth one. Stay busy as much as you can. Stay busy. Anxiety and idleness often go hand in hand. या फिर एंजाइटी, टेंशन और कुछ नहीं करना। ऐसा बैठा, आइडल बैठे ना, कुछ कोई काम नहीं करेंगे, ऐसे बैठा हुआ, बिजी नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। ऐसा एक बोल है कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। या फिर जब हम कुछ काम में इन्वॉल्व नहीं है, जब हम बिजी नहीं है कोई चीजों में, हमारा मन क्या करेगा? हमें ले जाएगा, कहीं ना कहीं ले जाएगा, कोई ना कोई टेंशन में ले जाएगा, और हम कोई ना कोई टेंशन में रहकर
it will start affecting our day. That is why the best thing to do is be busy. कोई ना कोई काम में बिजी रहना। मैं मेरे दोस्तों से भी, मैं कई लोगों से मैं कहता हूँ जब काउंसलिंग देता हूँ, अगर आपको कोई भी विषय में टेंशन है, इरिटेशन हो रहा है, गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, या घर के बाहर निकलो, कुछ काम करो, या फिर घर के अंदर कुछ काम करो, घर के अंदर वो सोफा को उठा के इस तरफ से उधर करो, कुछ ना कुछ करो। डू समथिंग दैट विल चेंज योर माइंड फ्रॉम दैट वरी, दैट विल ब्रिंग योर टेंशन एंड योर एंजाइटी डाउन। अगर हम सोफे पर ऐसा साइड में बैठा रह के उस चीज के बारे में सोचते रहेंगे, जितना सोचेंगे इट विल स्टार्ट इफेक्टिंग अस सो टेरिबली। इतना टेंशन हमारा बढ़ जाएगा। उससे अच्छा उस टेंशन को बाहर करो, गेट बिजी विद समथिंग, कुक समथिंग। लेडीज हु आर वरीड अबाउट टुमारो, कुक समथिंग स्पेशल फॉर योर चिल्ड्रन टुडे। अगर आप सोच कर मत बैठो, किचन में घुस जाओ। हम लोग क्या करते हैं, सोच कर टेंशन लेते हैं, लास्ट में फोन लेके कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, बेटा 2 बर्गर, 2 पिज्जा। नहीं, स्टॉप दैट, दैट्स वेरी इजी टू डू। व्हाट यू नीड टू डू, cook something quickly. Even men get into your kitchen, make something special, take that, waste your time there. वो idleness को तोड़ दो, laziness को तोड़ दो। कभी कभार हम इतने lazy हो जाते, we are just lying down and just हमारा mental state में हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में जाएंगे, thinking all these things that can never happen to us. Best is get busy. Tell somebody, get busy. Hallelujah. Performance of this hour's duty will be the preparation for the hours or ages that follow. Wow. It says performance. आप जो perform करते हो, या फिर जब when you get busy, that will help you to prepare yourself for tomorrow, rather than just sitting idle and thinking and what do you say, wasting your time. Get busy. And the last one, learn to be content. Anxiety agar come hona, learn to be content. And who taught this? Paul learned it very well. Paulus ने इस चीज को उनके जिंदगी में इतना अच्छे से सीखा है. And then he says that I have learned to be content about what I have. He doesn't complain about what he doesn't have. वो जो उसके पास है, अगर ब्लू पेन है तो उस ब्लू पेन के लिए प्रभु को धन्यवाद कर दे। ये नहीं सोचेंगे ये काला पेन क्यों नहीं है। कई लोग ऐसा, जब हमारे पास ब्लू है तो सोचते हैं कि यार काला क्यों नहीं, जब काला मिले तो बोलेंगे कि यार पीला क्यों नहीं है, जब पीला मिले तो बोलेंगे यार ये वो नहीं है। We always focus on things that we lack. Stop that. That will only bring more anxiety to us, more worry to us. उस चीज को ना करते हुए जो प्रभु ने दिया हुआ उस चीज में धन्यवाद करो प्रभु। Be content about what you have, and then God will bless you with what you need in your future. Yes, have a thankful heart, have a grateful heart. जो आपके पास है उस विषय में प्रभु को धन्यवाद कीजिए। प्रभु धन्यवाद, एटलीस्ट ये तो है, एटलीस्ट एक दिन का तो खाना है, एटलीस्ट थोड़ा पैसा तो बैंक में पड़ा हुआ है। ये मत सोचो कि यार पैसा पूरा खत्म हो गया, नहीं, थोड़ा तो पड़ा, 10 रुपया है, 1000 रुपया पड़ा है बैंक में। उस चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद करो। बी कंटेंट अबाउट व्हाट यू हैव एंड बी थैंकफुल टू गॉड, एंड यू सी माय गॉड विल ओपन वेज फॉर यू इन योर फ्यूचर। पौलुस ने सीखा और पौलुस ने हमें सिखाया कि बी कंटेंट इन योर लाइफ। दैट इटसेल्फ विल हेल्प अस टू गेट out of anxiety and worry in our lives. Hallelujah. Anxiety is not for us. Remove it completely. May the Lord continue to bless us. आइए हमारी आंखों को बंद करके quickly we'll have a word of prayer. Father, we thank you for this wonderful evening. Thank you, God, for blessing us, protecting us, keeping us safe under your mighty wings. प्रभु हमारे अंदर जो एंजाइटी है, जो वरी है, उसे तू दूर कर दे प्रभु। हम तेरे सामर्थ पर विश्वास करते हैं, तेरे सामर्थ पर हम भरोसा रखते हैं, तेरे एबिलिटीज पर भरोसा रखते हैं, तेरे वचन पर भरोसा रखते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है, हमारे परिवार तेरे हाथों में सुरक्षित है, हमारा फ्यूचर, हमारा करियर, हमारा लाइफ प्रभु, हमारा कलीसिया तेरे हाथों में
सुरक्षित है प्रभु, हम तेरे हैं प्रभु। हालेलुया। और प्रभु हम हमारे सारी चिंताओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। तो हम हर एक को आशीष कर, इन दिनों में जो वचन हमने सुना उस वचन के अनुसार जिंदगी को बिताए, उस वचन हमारे जिंदगी में कार्य करने दो प्रभु, ताकि तेरी नाम की महिमा हमारे जिंदगी में आने दो और हम एक आनंदित, सुख भरी, शांति भरी जिंदगी को हम बिताएं। Father, I pray that everyone who are worried about tomorrow's insecurity, isolation, helplessness, Lord, these elements in people's lives, assumptions about tomorrow, Lord, I break it in Jesus' name. And I pray your peace will reign in everyone's life, Lord. Yes, Lord, we declare it again and again that you are our comfort. You are our peace giver. You are our future taker. You are the one who takes care of our future. You are our deliverer. You are our provider. You are our shalom. You are our peace, Lord. Everything you are to us. Help us to trust in you, believe in you, and completely give ourselves to you, Lord. We thank you, God, for this evening. Bless your holy name. Tonight, give us all peaceful sleep, Lord, without any worry and anxiety about tomorrow. And give us good visions, good dreams. Speak to us, Lord. We give glory, honor, and praise to you, Lord. Thank you, God, that you heard our prayers. In Jesus' mighty name, we make this prayer. And all God's people say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. धन्यवाद आप सबों को, इतने समय आपने निकाला वचन के सुनने के लिए, प्रभु के पास बैठने के लिए। ये आपकी जिंदगी में एक बढ़िया आशीष का कारण बने। May the Lord bless you. Till we meet again, let us all stay home and let's stay safe. God bless you. Love you all.